Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sonab. दोस्तों, I watched a beautiful मराठी फिल्म yesterday. In fact, मराठी फिल्म्स का क्या कहना है यार, इतना सुंदर होता है, इतना खूबसूरत होता है, उनका जो स्टोरी नरेशन का स्टाइल होता है ना, वो सिंपल येट सोफिस्टिकेटेड होता है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। और उतना ही अच्छा लगा ये मराठी फिल्म पांगरुण देखकर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है। इट्स अ वेल मेड फिल्म, वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल एक्टेड, विद अ सुपर्ब आउटस्टैंडिंग म्यूजिक एंड अ वेरी वेरी स्टनिंग क्लाइमैक्स। ये है मेरा रिव्यू पांगरुण का। दोस्तों, अगर आप भी देखोगे ना, आप भी बोलोगे भाई वाह, इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। दोस्तों, ये फिल्म का जो कहानी है, पीरियड फिल्म है, प्री इंडिपेंडेंट इरा में सेट फिल्म है। अब इस फिल्म का कहानी का जो मेन पात्र है वो है ये लड़की, दिस यंग गर्ल प्लेड बाय गौरी, एक्ट्रेस गौरी। अब दिस यंग गर्ल, शी इज अ विडो। शी गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज। वो टाइम पे बहुत अर्ली एज पे शादी होता था। शी गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज एंड लॉस्ट हर हस्बैंड ऑल्सो एट अ वेरी अर्ली एज। सो नाउ शी इज अ विडो एंड हर पेरेंट्स वॉन्ट her to get married again, so they start searching out for a groom. अब groom आता है एक विद्वान, एक elderly man. He's an elderly guy, but he's a scholar, he's a vidwan, he's a priest, and he has got a good name in the village. But he has also lost his wife, someone who he loved absolutely dearly. He lost her. And now he has two daughters living with him in his house, and people around him tell him that, it is time to get married. A girl should be in your house again, as your wife, to take care of you, to take care of your daughters, your house, etc., etc. So even though he is not actively interested in getting married, he gives into the demands of his friends and his colleagues and his villagers, and they start searching out for an alliance, for a girl for him. एंड वो अलायंस आता है ये लड़की की तरफ से, और ये लड़की को अलायंस आता है ये एल्डरली विद्वान की तरफ से। अब जब ये लड़की, दिस यंग गर्ल, व्हेन ही सीज दिस मैन फॉर द फर्स्ट टाइम, शी इज नॉट वेरी एक्टिवली इंटरेस्टेड इन हिम एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड टू हिम. She says no to him because she at that time is infatuated with this Britisher, who she has a huge crush on and who she desires to get married to. But ultimately she gives in to her parents' demands and she gets married to this elderly Vidwan. Now once she gets married and comes into his house, she being a young bride, she craves for attention and physical intimacy, and she gives her husband multiple indications that she wants to establish physical intimate relationship with him. But this husband, because he's still in love with his first wife, he's not been able to forget his first wife, he still has deep memories of his first wife, he starts maintaining distance from his new wife. He is not able to consummate their marriage. Even though the wife wants him to consummate the marriage, and wife tries her best to establish that physical intimate relationship, the husband starts maintaining distance and he runs away. तो wife आती है, भाई कुछ तो मतलब फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप करो, मैं चाहती हूँ, वो ऐसा इंडायरेक्ट इंडिकेशन देती है, बट हस्बैंड ऐसे दूर भागता है यार। तो यही चलता रहता है फिल्म में। नाउ एंटर्स इनटू द पिक्चर a handsome young guy who is probably of the same age as that of this young wife, and he is the disciple of this Vidwan. And when he sees this young wife, the wife of his master, for the first time, he is smitten by her, absolutely smitten, and he tries his best to woo her and sends active signals to her that he is interested in establishing a physical intimate relationship with her. But she keeps on rejecting his advances. He keeps on trying, she keeps on rejecting. He keeps on trying, she keeps on rejecting. Ultimately, what happens eventually is she gives in to his demands, she succumbs to his, demands, to his advances, and they end up having an illicit affair. Now, what happens thereafter? What are the consequences? What is the aftermath? Does the husband learn about his young wife's illicit affair? And if he does, what does he do? That is what this film is all about. तो ये जो स्टोरी को महेश मांजरेकर साहब ने जो इंटरेस्टिंग एंगेजिंग तरीके से नरेट किया है, वो नरेशन देखने में बहुत मजा आया। कहीं पर भी बोर होने की गुंजाइश नहीं है, कहीं पर भी मेरा जो वो एंगेजिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं यार, कहीं पर भी वो डिप नहीं हुआ। एंगेज करके रखा फिल्म ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो दैट्स अ जॉब वेरी वेल डन बाय महेश मांजरेकर साहब। अब दोस्तों, द फिल्म, द वे इट बिगिंस, वो स्टार्टिंग का सीन आप देखो यार, वो एक गाना है यार, विठल, भगवान विठल के बारे में जो गाना है, उसमें जो गाया है वो सिंगर ने यार, मुझे पता नहीं सिंगर कौन है, बट जो हरकतें उन्होंने ली है,
आई एम नॉट अ सिंगर बट यार इतना मजा आया सुनने के लिए. दैट सेट द टोन राइट फॉर द फिल्म एंड देन द वे द स्टोरी प्रोग्रेस, द वे इट हैज बीन शॉट एंड प्रेजेंटेड विद सम नाइस ब्यूटीफुल लोकेशंस, नाइस सेटिंग्स, बहुत बहुत बेहतरीन लगा. हाँ, कहीं कहीं पर ना ऐसा लगेगा, आप जब फिल्म देखते वक्त आपको लगेगा कि शायद ये प्ले जैसा लग रहा है, स्टेज प्ले जैसा लग रहा है, क्योंकि लाइटिंग सेटिंग देख के आपको स्टेज प्ले का एक याद जरूर आएगा. बट nevertheless, the story, the narration is so nicely done, so engagingly done that you will enjoy watching the proceedings. Absolutely. Now, if I come to acting, Gauri is the star of this particular film. Yeah, she has acted so brilliantly well. She will touch your heart with her absolutely brilliant performance. Great screen presence, great body language, great dialogue delivery. और जो मल्टीपल इमोशंस को उन्होंने जिया है, उन्होंने दर्शाया है, उन्होंने दिखाया है, पोर्ट्रे किया है, अरे वो देखने लायक है यार. Superb acting and especially in the climax, her silence speaks volumes yaar. It's a stunning climax and Gauri is spectacularly brilliant in it and she is also a fabulous dancer. जो बैले वैले करती है यार, क्या करती है यार, उनका जो मूवमेंट्स में इतना ग्रेस है, इतना क्लास है, देखने में बहुत मजा आया यार. वेरी वेरी नाइस परफॉर्मेंस बाय गौरी. अमोल is superb as the Vidwan. He's so natural, so effortless यार. जो पोलाइट कर्टियस अंदाज उन्होंने दिखाया और जो दिल का साफ, वो जो साफ अंदाज उन्होंने दिखाया है यार, आई मीन आप उनको देख के बोलोगे भाई ये तो इनका ही प्रॉब्ली कैरेक्टर को इन्होंने, मतलब रियल कैरेक्टर को रील पे जिया है. हर इतना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है अमोल का कि मैं क्या बताऊं यार. वेरी वेरी नाइस. अगेन इन द क्लाइमैक्स, वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय अमोल. देन देयर इज रोहित. हो वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय रोहित ऑल्सो. वेरी वेरी नेचुरल, वेरी वेरी एफर्टलेस, वेरी वेरी नाइस टू वॉच. तो दोस्तों ये है कहानी पांगरुन का. अब एक चीज है कहानी के बारे में जो मुझे उतना जमा नहीं. अब ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो बंदा बार बार ट्राई कर रहा, मतलब वो यार इतनी बार क्यों ट्राई कर रहा, वो मेरे को समझ में नहीं आया. एंड जब भी वो ट्राई करता है लड़की रिजेक्ट करता है, ट्राई करता है लड़की रिजेक्ट करता है. तो ऐसा क्या हुआ कि अल्टीमेटली लड़की ने बोला हाँ चल हाँ यार, एंड दे हैड दैट इलिसिट अफेयर. ऐसा क्या हुआ कि हृदय परिवर्तन हुआ लड़की में, क्योंकि वो हृदय परिवर्तन होने के 2 सेकंड पहले तक उसने ना बोला था यार. तो इज देयर एनीथिंग दैट आई मिस्ड और व्हाई डिड दैट हृदय परिवर्तन हैपन? आई वुड certainly like to know, but nevertheless, great story. Look out for the climax and look out for the acting performances and the direction. I'm going with 3.5 stars for Pangrun. अगर आपने देखा है तो मुझे लिखकर बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा. चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा.